لاہور بورڈ نے میٹرک کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ رواں سال 2,82,308 امیدواروں نے امتحان دیے۔ میٹرک امتحان میں 1,82,186 امیدوار پاس ہوئے۔ لاہور بورڈ کے مطابق امتحان میں کامیابی کا تناسب 64.53% رہا۔ میٹرک کے امتحان میں 1,00,000 امیدوار فیل ہوئے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ لاہور بورڈ نے میٹرک کے سالانہ امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ رواں سال 2,82,308 امیدواروں نے امتحان دیے۔ میٹرک کے امتحانات میں 1,82,186 امیدوار پاس ہوئے ہیں۔ لاہور بورڈ کے مطابق امتحان میں کامیابی کا تناسب 64.53% رہا۔ میٹرک کے امتحان میں 1,00,000 امیدوار فیل ہوئے۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات کے نتائج: آمنہ محبوب نے 1192 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ مستقبل میں پاک فوج میں جانا چاہوں گی، آمنہ محبوب کا یہ کہنا ہے۔ مزید کہا کہ پاکستان کا تعلیمی نظام بہت بہتر ہے۔ ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا، جنید ریاض سے جان لیتے ہیں۔ جی جنید بتائیے۔ جی، لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے میٹرک سالانہ امتحانات 2026 کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ اس وقت میرے ساتھ ٹاپ پوزیشن جنہوں نے لاہور بورڈ میں پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ آمنہ محبوب جنہوں نے 1192 نمبر لے کر جو ہے وہ لاہور بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی، ان کا تعلق دی ایجوکیٹر ہائی اسکول فار گرلز سے ہے، اور اسی طرح محمد قاسم جنہوں نے 1191 نمبر لے کر جو ہے وہ دوسری پوزیشن حاصل کی، ان کا تعلق دانش اسکول سے ہے، اور اسی والے سے ہم ان سے بات کریں گے ان کو کیسا لگ رہا ہے اور ان کے بڑے لیے کیا اعزاز کی بات ہے کہ ان کو امید تھی کہ آپ کے اتنے نمبر آئیں گے، اور کیسا لگ رہا ہے؟ First of all, I am really grateful to Allah Almighty for His blessings. اور یہ میری مدر کا ایک ڈیکیڈ سے ہی ایم تھا کہ میں بورڈ ٹاپ کروں۔ میری مدر بھی اپنے ٹائم میں اسکول ٹاپر تحصیل ٹاپر رہ چکی ہیں، تو یہ ان کا ایم تھا کہ میں بورڈ ٹاپر بنوں، اور کئی سال سے محنت کی۔ 9th میں بھی لاہور بورڈ میں فرسٹ پوزیشن تھی اور پنجاب بورڈ میں سیکنڈ تھی، اور اس سال الحمدللہ میں نے امپروو کیا اور پنجاب بورڈ میں بھی پہلی پوزیشن ہے۔ اور اس کا سارا کریڈٹ میری ماما اور میرے ٹیچرز کو جاتا ہے۔ میری ماما نے کنٹینیوس ایفرٹس کیے، کئی راتیں جاگی، اور جتنی کتابیں میں نے پڑھیں اتنی کتابیں ہی میری ماما نے بھی پڑھیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ان فیوچر آپ کا کیا پلان ہے، کیا بننا چاہتی ہو، اور تعلیمی نظام سے آپ کتنا خوش ہیں؟ ان فیوچر انشاءاللہ میں MBBS میں ہی جاؤں گی، اور انشاءاللہ پاک آرمی جوائن کروں گی، اور اپنے ملک و قوم کی خدمت کریں گے۔ اور ایجوکیشن سسٹم میں الحمدللہ بہت خوش ہوں کہ میرے جیسے بچے بھی پنجاب بورڈ میں ٹاپ کر سکتے ہیں، تو یقیناً یہ سسٹم بہت ہی زیادہ صاف ہے، شفاف ہے، اور بغیر ہی کسی کرپشن کے یا کسی بھی چینجنگ کے رزلٹ بہت ہی آنیسٹلی آتا ہے۔ حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہیں گی، اور آپ گریڈنگ سسٹم کو لائک کرتی ہیں یا پوزیشنز؟ گریڈنگ سسٹم بیٹر ہوگا، کیونکہ کئی اسٹوڈنٹ ڈسکریج ہو جاتے ہیں 1 یا 2 نمبر سے، اور وہ زیادہ فوکس اس پہ کریں گے کہ ان کا کریئر بہتر ہو جائے، اور 1 یا 2 نمبر کا جو کمپٹیشن ہے، کمپیریزن ہے، وہ ختم ہو سکے گا۔ حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے، کیا کرنا چاہیے تاکہ پبلک کے لیے بہتر ہو سکے؟ پبلک کے لیے اسکولس میں بیٹر انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹیچرز کا بھی بہت زیادہ رول ہوتا ہے۔ ایکسپرٹ ٹیچرز ہوں تو بے شک بچے کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں، اور میرے کیس میں میرے ٹیچرز کی ایفرٹس بھی تھیں اور دعائیں بھی تھیں، اور یہ دعائیں ہی ہیں جنہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا، تو میں سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ جی، ہم نے بات سنی آمنہ محبوب کی، جو 1192 نمبر لے کے ٹاپ پوزیشن پہ رہی، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ آرمی میں جانا چاہتی ہیں، ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتی ہیں۔ اب اسی والے سے ہم بات کریں گے جس کی دوسری پوزیشن ہے، دانش اسکول کے طالب علم ہیں محمد قاسم، 1191 نمبر ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کیسا لگ رہا ہے آپ کو، اور کیا کہیں گے آج کیسا دن؟ جی، میں بہت ہی خوش ہوں۔ جب میں نے اپنی یہ پوزیشن کے بارے میں سنا مجھے بہت ہی خوشی ہوئی، اور میری اس ساری کامیابی کا جو ہے میں سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک کی رحمت کی وجہ سے ہی بندہ ناچیز نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے، اور بے اس کامیابی کا کریڈٹ میرے والدین کی دعائیں ہیں، میرے اساتذہ کی محنت ہے، اور ہمارے پرنسپل صاحب کی محنت ہے، ہمارا ادارے کی محنت ہے، اور اسپیشلی میں شکریہ ادا کرتا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، جن کے قائم کردہ اس ادارے کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہو پائے کہ ہم جیسے بچے بھی جن کے پاس وسائل بھی موجود نہیں تھے، جو کہ ہم بکس خریدنے کے قابل بھی نہیں تھے، لیکن ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا گیا جہاں پر ہم نے کہ اپنی صلاحیتوں کو نکھارا اور آج اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ان سب کا جو ہے
क्रेडिट मेन हमारा जो क्रेडिट है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर का है। बैकवर्ड एरिया है, दानिश स्कूल में कैसी तालीम दी जा रही है और आप समझते हैं कि ये एक बहुत अच्छा इकदाम है और आज आपने पोजीशन भी हासिल किया है 1191 नंबर, तो Yes, आपको sir. उम्मीद थी कि आप नंबर लेंगे? यस सर, मुझे बिल्कुल उम्मीद थी कि मैं इंशाल्लाह, मुझे तो उम्मीद थी कि मैं फर्स्ट पोजीशन हासिल करूंगा, लेकिन एक नंबर से रह गया। फिर भी अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि मुझे मेरी सेकंड पोजीशन आ गई है। दरअसल दानिश स्कूल जो है एक बैकवर्ड एरिया जो है हमारे पास राजनपुर, वहाँ पर जो है एक इतना अच्छा स्कूल, इकामती स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल है, जहाँ पर जो है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और ये मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक ये विजन था। बताइएगा कि इन फ्यूचर क्या बनना चाहते हैं और मुल्क और कौम के लिए क्या करना चाहते मैं इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं CSS ऑफिसर बनूंगा और मुल्क को कौम की खिदमत करूंगा। हैं? जी, आपने बात सुनी कि सेकंड पोजीशन वाले तालिब इल्म मोहम्मद कासिम जो कि दानिश स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका कहना है कि वो CSS करना चाहते हैं, मुकाबले का इम्तिहान पास करना चाहते हैं और सख्त मेहनत करेंगे और मुल्क और कौम की खिदमत जो है वो CSS का इम्तिहान पास करके ठीक है, करेंगे। बहुत शुक्रिया जुनेद। पेट्रोल की रोज बरोज बढ़ती कीमतें आवाम के लिए दर्द सर बन गई हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर शहरी बरहम है। पेट्रोल 4 रुपये 45 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 334 रुपये 96 पैसे हो गई। हुकूमत एक दिन कीमत कम करके दूसरे दिन बढ़ा देती है। शहरियों की जानिब से मजीद क्या गिले शिकवे हैं, कैसा रद्द अमल है, हसन अली से जानेंगे। जी हसन। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर से रद्द-ओ-बदल किया गया है और पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये और 45 पैसे का इजाफा जो है वो कर दिया गया है, जबकि डीज़ल की कीमत में 2 रुपये फ़ी लीटर की कमी की गई है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। ये बताएं जी कि एक दिन जो है वो कीमत कम होती है, दूसरे दिन बढ़ा दी जाती है हुकूमत की जानिब से, क्या कहेंगे? सर कहना कि कल कीमत घट की ते ਵਧਾਤੀ है। माड़ा बंदा की कर सकता है, वक्त रोटी पूरी करनी औखी है। ठीक है, 1000-1200 दिहाड़ी होंदी है। ठीक है, एक दिन ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, अगले 10 फिर ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 2 रुपये कटाण 10 ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हुकूमत इस नजायज़ कर रही सारा कुछ ना। गरीब आम किधर जाए दी, महंगाई किधर चली जाती है। 1000 ਦਾ ਕੀ ਬੰਦਾ अजकल गरीब बंदा किराया देवे, ढिड पूरा करे या पेट्रोल पवावे, कितना कुछ कर सकता है। आवाम को सोचना चाहिए, वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए, आवाम को सोचे करे कितना महंगाई तो कंट्रोल करे। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे शहरी जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि दिहाड़ीदार तबका जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज़ इजाफे के बायस उनका बजट जो है वो बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे ताकि आम शहरियों को, आम सार्फिन को किसी हद तक रिलीफ मिल सके। हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को का सार्फिन पर वाजिबात की मद में अरबों का इजाफी बोझ डालने का फैसला सामने आया है। 2 अरब 35 करोड़ बिलों की मद में इजाफी कीमत वसूल करने के लिए नेपरा से रुजू कर लिया गया है। सामाही टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। तफसीलात से आगाह करेंगे, शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली के सार्फिन पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। नेपरा में एक दरख्वास्त लेस्को की जानिब से दायर की गई, जिसमें इस बात की इस्तदा की गई है कि सेमाई टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन से 2 अरब 35 करोड़ रुपए इजाफी वसूल किए जाने हैं, लिहाजा इस बात की मंजूरी दी जाए। तो नेपरा की जानिब से दरख्वास्त को मंजूर करते हुए रवा माह समाअत मुकर्रर की है और इसके बाद फैसला किया जाएगा कि आया के सार्फिन से माह अप्रैल से लेकर जून की जो सेमाई टैरिफ एडजस्टमेंट है उसमें कितना इजाफा मंजूर किया जाता है और वो बिजली के बिलों में वसूल किया जाएगा। जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें कहा गया है कि बिजली की पैदावार, इसके साथ ईंधन के हवाले से कहा गया है कि ईंधन की कीमतों में रद्दो-बदल और ख़ास तौर पर नेट मीटरिंग सार्फिन जो बिजली सिस्टम में शामिल कर रहे हैं उनकी वजह से जो मुख्तलिफ़ किस्म के मामला सिस्टम में आ रहे हैं और अखराजात बढ़ रहे हैं, इनको इस दरख्वास्त का हिस्सा बनाया गया है। इसके साथ कैपेसिटी चार्जेस का कहा गया है, इसमें ऑपरेशन के जो चार्जेस हैं, इसके अलावा ट्रांसमिशन चार्जेस हैं, वो भी इस दरख्वास्त में शामिल किए गए हैं और नेपरा में बाज़ाब्ता तौर पर यह दरख्वास्त देकर इस बात की इस्तदा की गई है कि 2 अरब 35 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जाए ताकि सार्फिन से इजाफी बिल्स वसूल किए जा सकें। तो नेपरा रवा माह में जो दरख्वास्त है इस पर समाअत करेगा और लेस्को समेत दीगर कंपनियों की जानिब से भी सेमाई टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में जो दरख्वास्तें दी गई हैं उनको इसी समाअत का हिस्सा बनाकर नेपरा हतमी समाअत करेगी और उसके बाद अगर फैसला किया जाता है और कीमत की मंजूरी दी जाती है तो सार्फिन से आइंदा माह से
इजाफी कीमतों की वसूली का आगाज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। गिरा फरोशी ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। दुकानदार सब्जियां और फल मनमानी रेट्स पर फरोख्त करने लगे हैं। शहरी महंगे दामों सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं। रेट लिस्ट के हवाले से अपडेट करेंगे अरबाज खान। जी अरबाज। जी बिल्कुल, ओपन मार्केट और सरकारी रेट लिस्ट में सब्जियों की कीमतों में फ़र्क का हाल बरकरार है, जिसकी वजह से ख़रीदार खासे परेशान दिखाई देते हैं। बढ़ती हुई कीमतों की वजह से क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर है, जिसकी वजह से शहरी शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम आज के रोज़ सब्जियों की कीमतों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं टमाटर की, जिसकी कीमत के अंदर दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। सरकारी तौर पर इसकी कीमत तो रखी जा रही है 250 रुपये फ़ी किलो, मगर ओपन मार्केट के अंदर ये 400 रुपये फ़ी किलो में भी फ़रोख्त हो रहा है। वहीं दूसरी जानिब प्याज की कीमत के अंदर भी एक इजाफा देखने में आया है, जहां सरकारी तौर पर इसकी कीमत तो रखी गई है 160 रुपये फ़ी किलो, मगर ओपन मार्केट के अंदर ये कीमत 200 रुपये फ़ी किलो तक भी पहुंची हुई है। उसके अलावा आलू, जो कि हर घर की ज़रूरत होती है, उसकी सरकारी कीमत है 32 रुपये फ़ी किलो, मगर ओपन मार्केट के अंदर वो 80 रुपये तक में जा पहुँचा है। मज़ीद अगर हम कुछ सब्जियों की बात करें तो भिंडी की सरकारी कीमत है 160 रुपये फ़ी किलो, जबकि ओपन मार्केट के अंदर वो 200 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इसी के अलावा अगर हम बात करें शिमला मिर्च की, तो उसकी सरकारी कीमत है 310 रुपये, मगर ओपन मार्केट के अंदर एक बड़े इजाफे के बाद 350 से 360 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इसी के अलावा जो देसी लहसुन है उसकी सरकारी कीमत है 160 रुपये फ़ी किलो, मगर शहरियों को एक बड़े इजाफे के बाद वो 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी के अलावा जो अदरक है उनकी सरकारी कीमत ही 350 रुपये फ़ी किलो मुतय्यन की गई है, मगर ओपन मार्केट में 450 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। सब्जियों की ख़रीदारी करने आने वाले तमाम तर जो ख़रीदार हैं उनका ये कहना है कि सरकारी रेट लिस्ट पर इतलाक़ को यकीनी बनाया जाए, ताकि सफ़ेद पोश तबके के लिए सब्जियों का आसान से आसान हो सके। जी।